सबरीमाला सोने की चोरी मामले में सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की बर्खास्त पर मंदिर प्रशासन को सौंप दिया जाए, ऐसी मांग SASS ने किया है। इस मामले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु मुंबई सहित कई स्थानों पर बड़े विरोध प्रदर्शन भी किए गए। सबरीमाला अयप्पा सेवा समाज SASS की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC की बैठक मुंबई में हुई। मुंबई पत्रकार संघ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबरीमाला अयप्पा सेवा समाज के पदाधिकारियों ने सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में CBI जांच की मांग की है कि केरला सरकार दोषियों पर अब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की है, ऐसा बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। TB शंकर जी अपना साथ है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री नाइनी बुद्रेड्डी अपने साथ है। पूरा अपना वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सबरीमाला के काम करने वाला बहुत है और पंगन का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी पूरा है। इसके बारे में आपके पास पूरा विषय अपना नेशनल चेयरमैन श्री SJR कुमार जी हमको बताएंगे। हम SJR कुमार जी को स्वागत करता है। अपने AR मोहन जी बनते बनकते श्री स्वामी शरणम स्वामी शरणम स्वामी शरणम। We are assembled here to protest against the illegalities that is happening for many number of years in Kerala government as well as within the Travancore Deवस्थानम board. The fact is that now as we are coming to this place, I got a message from the media people from Kochi and also Trivandrum that much more things are happening. Today some other revelation has come out. About 28,000 acres of land of the Malabar Deवस्थानम board has been lost because of the mismanagement of the Malabar Deवस्थानam board. So the Deवस्थानam board, there are 5 Deवस्थानam boards in Kerala. All of them are actually very corrupt people. They are actually, I would call them thieves because they have stolen the property of the Devas. I am coming back to Sabrimala, the most important thing. We are all people from almost 12 states of Kerala, Kerala Bharat. We are here today to protest against what are happening in particularly in Sabrimala. In Sabrimala, so many things, but I am just going back to 1998 when Vijaya Mallya has decided to donate about 35 kilograms, not just grams, 35 kilograms of sovereign gold, 24 karat gold, being imported from Switzerland and handed over to the Kerala Travancore Deवस्थानam board. The purpose was to cover all the gopurams of Sankdam Sankdaram of Sabrimala Ayyappa and also all the surrounding idols like Dwarapalakas and all that. That happened in 1998. But unfortunately now what we have come to know, after all this after this news came out of theft, now they are saying they don't have any record of how much of gold has been used in there. That is number one. Second, actually in 2019, see the gold, the Dwarapalaga is covered with gold, solid plate of gold that was removed and taken away. Actually Deवस्थानam board allowed that. Deवस्थाnam board has met and decided to take it out for repairs. Actually as per the Travancore Deवस्थाnam manual and as per the directions of the High Court of Kerala, nobody is supposed to take anything out of Sabrimala, even for repairs or renovation or anything. Whatever has to be done, that has to be done at Sabrimala itself. That is the statute, that is the rule. But they have broken that. Deवस्थाnam board has allowed a particular person by the name Unni Krishnan Koti. You just remember that name. He is number one culprit in that. He is the number one conspirator. So he has allowed to take it out. And he was asked to take it to a company called Smart Creations in Chennai for repairs. Thing is that you should note that. See, this Chennai firm, Smart Creations, their advocate has openly said, we don't accept any material for repairs. We are the people who do electroplating on bare metals like copper or whatever it is. Now how can these people send to that place where they don't accept it? That means that is the number one issue. But the Kerala, the Travancore Deवस्थाnam board decided and he was allowed to take it out. And it has gone out of Sabrimala. And you know, he has not handed over to Smart Creations. He handed over of 39 days. And this criminal was keeping that idol 39 days with him. But he was not. मंदिर में कुछ गोल्ड चोरी का मामला क्या है जरा उसके बारे? जी बहुत सरल बात है। कोतवाल और चोर एक ही हो सकता है क्या? जब SIT बन गया है, पुलिस उनका है, तो इसमें जस्टिस होना चाहिए। इसलिए हमारा मांग है जो इस बात का खुलासा होने के लिए CBI का जांच होगा जो इंडिपेंडेंट होगा
जिससे जस्टिस मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सब भक्तों का पूरा सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। ये बहुत सीरियस मामला है। हर नागरिक का इसमें उसका राइट टू वर्शिप, उसके ऊपर भी ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस तरह मंदिर का संपत्ति अगर नष्ट होता है, वो एक देश के लिए भी एक संपत्ति का नष्ट है। इसलिए इस मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मेरा था। इसलिए हमारा सबरीमला अय्यप्पा सेवा समाजम इस विषय को जो गंभीरता से इसको लेना चाहिए, वैसा ही इस मुद्दे पे उन्होंने इसको अभी अप्रोच कर रहे हैं। आप लोग वहाँ के गवर्नमेंट से इस बारे में शिकायत की है, उनका क्या है? गवर्नमेंट का शिकायत हुआ है, लेकिन इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया, जैसा हमारा SDR कुमार जी जो हमारा राष्ट्रीय चेयरमैन ने बताया है, ये एक इंडिपेंडेंट जज होना चाहिए। जब उन लोग खुद इन्वॉल्व है, ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है, जब कोर्ट ने निर्देश देने के बाद ही ये पूरा उनका कार्रवाई शुरू हो रहा है, तो इसमें एक फेयरनेस प्राइमा फेसी भी दिख नहीं रहा है। कितने का ये घोटाला है, कितना बड़ा गमन है, क्या मामला? ये करोड़ों का है, इसीलिए उसके ऊपर विषय लेना ज़रूरी है। ये सीरियस बात है। CBI इंक्वायरी वगैरह की मांग आप लोगों ने चली है? जी हमने किया है जी। कई जगह जो है मोर्चा निकाला गया है, कई जगह प्रेस में मीटिंग किया गया है। क्या इसका जो है उद्देश्य? जी इस परिणाम में आप देखेंगे ना, पूरा काफ़ी डिवोटीज़ है जो मातृशक्ति है, उन लोग भी कल आया था, शायद आप भी थे कल। तो ये कल केरला हाउस में हमारा एक प्रदर्शन हुआ, उसमें एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारा आप सब मीडिया के द्वारा ये हमारा विनती है, इस विषय को आप सभी भक्तजनों के तक लेके जाइए, ये हमारा विनती है। ये सबको मालूमात होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ हिंदू लोग का संपत्ति सब ऐसा ही नष्ट होते जाएगा, तो ये कैसा चलेगा? ये मांगना हमारा क्या गलती है इसमें? आपका नाम क्या है? क्या मैं कुमार वैद्यनाथन, मैं सबरीमला अय्यप्पा सेवा समाजम कोंकण प्रांत का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इंसाफ के लिए पूरे देश में लोगों को मांगना पड़ता है जैसे भी, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत शर्म की बात है, ये सबको मालूम है ये हिंदू राष्ट्र है, फिर भी ये सिर्फ हिंदू लोग के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। फेयर इंक्वायरी होने के लिए हमारा मांग है, CBI का इंक्वायरी होना हमारा विनती है।